Hello friends, welcome to my channel Maths Guru. Today I will take matrices part 2. Previous class में हमने matrices part 1 किया था, आज matrices part 2 in this operation on matrices. First is your addition of matrices. In this, if we have to add two matrices, then their order must be same. A is equal to, say I am taking 2 by 2 matrix 1, 2, 3, 4. B is equal to, say 3, 5, 4, 7. If I have to add A plus B, then corresponding element will add in the corresponding element. So 1 plus 3 will become 4, 2 plus 5 will become 7, 3 plus 4 will become 7 and 4 plus 7 will become 11. So this is the addition of a matrices, right? Second is your subtraction of a matrices. In the case of a subtraction, we will either take negative of a matrix or simply subtract both the matrices, right? For example, suppose A is your, I'll take the same matrix, 1, 2, 3, 4. And B is again say 3, 5, 4, 7. A minus B, that means subtraction. So 1 minus 3 will become minus 2, 2 minus 5 will become minus 3, 3 minus 4 will become minus 1, 4 minus 7 will become minus 3 like this. ठीक है, इसको हम माइनस कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3, 1, 3, right? Or if you have to subtract a matrix, we can also write A plus of minus B. This is called negative of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर माइनस का साइन लगा देंगे तो दैट विल बिकम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. वो मैट्रिक्स आपका नेगेटिव हो गया. इज इट क्लियर? तो दीज आर द टू ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन में भी आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल, दैट इज A प्लस B मस्ट बी इक्वल टू B प्लस A. दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Second is your associative property, that is also applicable in the case of an addition only. A plus B plus C is equal to A plus B plus C. This is the associative property. These two properties applicable only in the case of an addition. जब भी आप add करेंगे, subtraction के साथ ये possible नहीं है. ठीक है. Next is your, this is the how you can multiply any of the matrix by a scalar quantity. So in that case, suppose you have a matrix KA. A is any of the matrix and K is your scalar quantity. For example, if I am taking K as 2, matrix A is your say 0, 1, 3, 4. If I have to multiply 2A, so that comes out to be 2 into 0, 3, 1, 4 can be written as 0, 2 1s are 2, 3s are 6, 4 2s are 8 like this. This will become how you will multiply a scalar quantity by a matrix, right? Next is the most important topic, that is your multiplication of a matrix. इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, इसकी प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी कैलकुलेशंस में. अगर एक बार समझ में आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके पास अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर से p बाई q है, राइट? तो n मस्ट बी इक्वल टू p. n और p सेम होना चाहिए. n और p सेम का मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नहीं. ठीक है. अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दे रही हूँ. से 1, 2, 3, 4 मैंने यहाँ पे 2 by 2 की मैट्रिक्स ली है. 2 by 2 के मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं. ठीक है. अब मैं यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखूंगी उसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 होनी चाहिए. कॉलम कितने भी हो सकते हैं.
मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए नंबर ऑफ रोज को 2 लिया, से 1 2 3 4 5 0। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स को 3 कर दिया। ठीक है, अब ये और ये दोनों सेम है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आपके पास m/q। m/q का मतलब 2/3 विल बिकम योर न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंडिविजुअल एलिमेंट विल गेट एडेड, यानी कि 1 into 1 plus 2 into 4. So this will become 1 into 1 plus 2 into 4 will become your first element. Then this इसको सेकेंड कॉलम से किया, 1 into 2 plus 2 into 5. This is the second element of the first row. फिर इसी रो को हमने थर्ड कॉलम से किया, 1 into 3 plus 2 into 0. नेक्स्ट हमने, अब हमारे पास फर्स्ट रो और तीनों कॉलम्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सो दिस विल बिकम 3 into 1 plus 4 into 4 plus 4 into 4. Next is equal to 3 into 2 plus 4 into 5. Next is your 3 into 3 plus 4 into 0. ये आपके पास आ गई है नई मैट्रिक्स। अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो कितना आएगा, 4 2 8 plus 1 9, 5 2 10 plus 2 12, then 0 plus 3 3, 4 4 16 plus 3 19, then 5 4 20 plus 6 26, then 4 into 0 3 3 9. दिस इज योर न्यू मैट्रिक्स। अब आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं कि ये 2/3 आया है जो हमें आना चाहिए था। This is how we can multiply the matrices. Number of rows should be equal to number of columns. इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो एक एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड एलिमेंट आएगा। ये हम फर्स्ट रो के चल रहे हैं तो फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो थर्ड एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो का। सेम इज द केस विद द सेकेंड रो एंड दीज कॉलम्स, राइट। अगर आपका ये मल्टीप्लिकेशन ठीक होता है तो आपको मैट्रिक्सेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट। नेक्स्ट इज योर, in case of multiplication sometimes commutative property is applicable and most of the time it is not applicable. If I am saying AB is not equal to BA in most of the time, but in some cases it is possible. For example, if I'll take an example, say A is equal to 1002 and B is equal to 3004. If I'll multiply AB, that comes out to be 1 into 3 3, then 1 into 0 and 0 into 4, this is 0, 0 into 3 0, 2 into 0 0, 0 into 0 and 4 2s are 8. This is, now I am multiplying BA. BA is equal to this row is multiplied by the column, so 3 into 1 3, then this row is multiplied by the second column, that is 0, then this is multiplied by the second row multiplied by the first column 0, and second row multiplied by the second column will get 8, right. In this case it is possible, but most of the time it is not possible. AB is not equal to BA, right. Now associative property is sometimes applicable, that is A into BC is equal to AB into C in some cases, right. Associative property. And distributive property is applicable in the case of a multiplication over addition. Distributive property, A dot B plus C, that is equal to AB plus AC. Multiplication over addition, right. Third is your multiplicative identity, by which matrix you will multiply the given matrix so that you will get the same matrix. That is AI is equal to IA is equal to A. Here I is your identity matrix of the same order.
आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑफ द सेम ऑर्डर, जो ऑर्डर ए का होगा वही इसका भी होना चाहिए, तभी पॉसिबल है ये। ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, राइट। नाउ आई एम स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में आपके पास ए बी सी 3 मैट्रिसेस आर गिवन and you have to find the value of a plus b, a minus b, 3a minus c, a b, b a. I think you can do it yourself. This is a simple question, right? सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। इन द थर्ड क्वेश्चन में आपको एक 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिखा रही हूँ। इससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि हाउ यू विल सॉल्व अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 मैट्रिक्स, राइट। इन दिस केस I am taking fourth part, that is 2, 3, 4, then 3, 4, 5, then 4, 5, 6, multiplied by the second matrix, that is 1 minus 3, 5, then 0, 2, 4, 3, 0, 5, right. In this you have to multiply this matrix by this. Suppose this is an A, this is an B, and their product comes out to be AB, right? Now, first row multiplied by the first column. 2 into 1 plus 3 into 0, 0. 4 3s are 12. So, 12 plus 2 will become 14 is your first element, right? Sorry. Now, in the second, first row is multiplied by the second column. 2 into 3 minus 6, 3 2s are 6, plus 6 minus 6 can become 0, 4 into 0 will become 0. Now multiplied by the third column, 2 into 5 10, 3 4s are 12, 12 and 10 22, 22 and 4 5s are 20, 22 and 20 will become 42, right. Then second row multiplied by the first column, 3 0 15, 15 or 3 18. Then second row multiplied by the second column, minus 9 and 8, minus 1. ठीक है। Now this is by the third column, 3 5s are 15, 4 4s are 16. 15 and 16 will become 31. 31 and 25. 31 and 25 will become 56. ठीक है। Now 4 0 6 3s are 18, 18 or 4 22. Now 4 3s are 12, 5 2s are 10. Now this will become 12 and 10, that is minus 2, और next 0 था। अब इस वाले थर्ड रो को आपने लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 4 5s are 20, 4 5s are 20, 20 and 20 40, and 6 5s are 30, 30 40 और 30 70. This is your product of a 2 matrices. ठीक है। One more example in which single matrix is given. Second example, second part, that is column matrix 1 2 3 and row matrix 2 3 4. ठीक है। Here order is 3 by 1. Here order is 1 by 3. Now you will see these two are same. आपका जो आंसर आएगा that is 3 by 3 matrix. ठीक है। तो this comes out to be 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4. Then इसको इससे किया, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. इसको इससे किया, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. This comes out to be 3 by 3 matrix. Got it? अभी आपको मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास सिंपल ऑपरेशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। Fifth question, in which you have to multiply the given matrix by a scalar quantity. In that you will simply multiply the complete matrix, that is all the elements. जितने भी एलिमेंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू आ जाएगा। Now I am doing the sixth question, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। For that सिक्स क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है cos थीटा within the matrix. So cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus cos sin theta within the matrix sin theta minus cos theta, then cos theta sin theta.
दिस विल बिकम, आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक की स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक सिंगल क्वांटिटी है, इसको सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, देन cos थीटा sin थीटा, दिस विल बिकम माइनस cos थीटा sin थीटा एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम आपने सेकेंड मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, देन माइनस साइन थीटा cos थीटा, then sin theta cos theta, then sin square theta. Now you will simply add these two values. Cos square plus sin square, identity 1. Cos theta sin theta minus sin theta cos theta 0. Minus cos theta sin theta plus sin theta cos theta 0. Cos square theta plus sin square theta is again 1. This is your answer. Got it? Same now in the seventh question you have given the equation in which you have to find the matrices x and y. ठीक है, मैं इसका सेकेंड पार्ट कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट थोड़ा भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करना है, उसके बाद वैल्यूज निकालनी है, तो बेटर है वो कर लेंगी। फर्स्ट पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगी। ठीक है, फर्स्ट आपके पास है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 2340। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंपल जस्ट लाइक द लीनियर इक्वेशन जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 10th क्लास में भी। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को कैंसिल कर देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। फॉर दैट हमें उसके कोफिशिएंट को पहले सेम करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं तो हमें पहले पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर वाली इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको अगर हमने 2 से किया तो ये 4x प्लस 6y, इधर भी एलिमेंट मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होंगे तो 4, 8, 6 और 0, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 9x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 6 माइनस 6 माइनस 3 15। ठीक है, नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन। सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस एंड दिस साइन गेट्स चेंज माइनस, plus 6y minus 6y get cancelled. 4x minus 9x will become minus 5x. Here we will subtract the matrices. 4 minus 6 minus 2, 6 plus 6 12, 8 plus 3 11, 0 minus 15 minus 15. ये आ गई वैल्यू। Now the value of x is equal to this 1 by 5 will goes there, minus 1 by 5 डिवीजन में चला जाएगा, 12, 11 माइनस 15। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू आ गई। यू विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ y। अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2 इंटू, तो दिस विल बिकम माइनस 2 बाई 5 विद इन द ब्रैकेट, माइनस 2, 12, 11 माइनस 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। अब आपने क्या करना है, 3y को इधर रखा और इस वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दिया तो 2340, दिस विल बिकम प्लस, हियर इट इज माइनस 2 बाई 5 माइनस 2, 12, 11 माइनस 15। अब इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 4 बाई 5, 2 माइनस 4 बाई 5 आपके पास, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 24 बाई 5, दिस विल बिकम 4 प्लस 22 बाई 5, दिस इज 0, तो माइनस 15 टू ज़ा 30, माइनस 30 बाई 5 दैट इज माइनस 6। ठीक है, हेयर 1 बाई 3 एंड दिस विल बिकम द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इट विल बिकम 1 बाई 3, एलसीएम लेते हैं, 5 टू ज़ा 10, तो दिस विल बिकम 6 बाई 5, 5 3 ज़ा 15, 15 और 24 ऐड हो गया, कितना हो गया 39 बाई 5। फिर आपने फिर एलसीएम लिया, 5 4 ज़ा 20, 20 और 22 42 बाई 5, और ये आपके पास है माइनस 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अंडरस्टैंड? ठीक है, सेम आपके पास है 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन भी सिंपल है।
10th 11th 12th these are the same type of questions. ठीक है. 13th I am solving. 13th question is a little bit different one. These exercises based on the operation of matrices, totally based on that. Thirteenth question में you have given fx is equal to cos x minus sin x 0, then sin x cos x 0 0 0 1. You have to need fy. Fy में instead of x variable we will replace it by y variable. So this will become cos y minus sin y 0, then sin y 0 cos y 0 0 1. ठीक है. नाउ आपको पास अब fx इंटू fy करना है. आपको इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है. दैट विल बिकम एन आइडेंटिटी fy. ठीक है. अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया. दिस रो इज मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम. तो कितना हो जाएगा? cos x cos y माइनस sin x sin y. cos x cos y माइनस sin x sin y फर्स्ट एलिमेंट. फिर इसको आपने सेकेंड रो से कॉलम से किया. माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y. यानी कि अगर आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस हो जाएगा sin x cos y. थर्ड आपके पास हो जाएगा 0. ठीक है. फिर सेकेंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम से किया. sin x sin y sin x cos y प्लस cos x sin y. फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से किया. माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y. और फिर ये दिस विल बिकम 0. फिर थर्ड रो को आपने फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आ गया 0. दिस इज ऑल्सो बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 1. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए आपके पास cos x cos y माइनस sin x sin y दैट इज cos ऑफ x प्लस y की आइडेंटिटी है. ठीक है. यहाँ भी आपके पास cos a sin b प्लस sin a cos b. ये आपके पास किसकी आइडेंटिटी है? cos sin a प्लस b की. तो दिस विल बिकम sin x प्लस y. बाहर माइनस था एज इट इज. दिस इज 0. ये फिर अगेन आपके पास sin a प्लस b की आइडेंटिटी है x प्लस y. ये अगेन cos a प्लस b की आइडेंटिटी है x प्लस y. 0 0 0 1. दैट कम्स आउट टू बी f ऑफ x प्लस y. हेंस प्रूव्ड. इज इट क्लियर? ठीक है. अब आपके पास नेक्स्ट में आपको सिंपली प्रोडक्ट करके वेरीफाई करना है कि ये प्रूव होता है या नहीं होता. उसमें आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान से. नेक्स्ट 15 16 17 दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसमें कई बार आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाते हैं इन द 4 मार्क्स. ठीक है. तो इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है कि आपके पास वैल्यू क्या है. मैं आपको 15 क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ. रेस्ट आप खुद सॉल्व करेंगे. इफ एनी ऑफ यू हैज डाउट देन प्लीज लेट मी नो. 15 क्वेश्चन में आपके पास मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 3/3 की है. 2 2 1 0 1 माइनस 1 एंड 1 3 0. ठीक है. आपको इसमें प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू 0. ठीक है. नहीं सॉरी, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं. This is 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0 multiplied by again A matrix 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0. इसको आपने मल्टीप्लाई किया. इसको वही अगेन इसके साथ 2 2 4 ये 0 ये 1 ये आ गया 5. ठीक है. इसको इससे किया. ये 0 ये आ गया माइनस 1. इसको इससे किया 2 0 और 0 यानी कि 2. फिर इसको इससे किया 2 2 4 2 1 2 4 और 2 6 और 3 9. इसको 0 देन 1 और माइनस 3 माइनस 2 देन 2 और 3 5. फिर इसको इससे किया 2 माइनस 2 0 हो गया और ये भी आपका आ गया 0. फिर इसको इससे किया 0 माइनस 1 और 0 माइनस 1. फिर 1
और -3 -2, ये आ गई आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है। a स्क्वायर की जगह हमने a स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 590 -1 -2 -1 2 5 -2, ठीक है। -5a, 5 से मैं साथ साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 2 10, 5 2 10, 5 0 5 -5 5 15 0, ठीक है। 6i, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और आइडेंटिटी यहाँ पे 3/3 की है, तो हम भी 3/3 की मैट्रिक्स लेंगे। तो अगर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 -10 -4 +6 2 -1 -0 -1 और 0 -1, देन 2 -5 -3 +0 -3, 9 -10 -1 -1 +0 -1, -2 -5 -7 -7 +6 -1, then 5 -5 0 और +6, sorry 5 -15 -10 +0 -10. Next is your 0 -5 -5 +0 -5, -1 +5 4 4 +0 4, -2 -0, ये खत्म आपका 6 6 -2 comes out to be 4. This is your answer. Is it clear? ठीक है. Now next of the question you can do it yourself. Next is your for this part, matrices part 2 is enough. Now I'll start with the next matrix part 3 in my next class. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ्स गुरु। और इसके बाद मैट्रिसेस पार्ट 3 में मैं इसका क्वेश्चन नंबर 18, दैट्स अ लिटिल बिट लेंथी वन, तो उसको मैं एक्सप्लेन करके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19th एंड 20th एक्सप्लेन करके, आफ्टर दैट आई स्टार्ट विद द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे लाइक करिए और कमेंट दीजिए। थैंक यू।